Hello everyone, welcome to my channel. Let's start today with our another chapter of history. Today I will start with chapter 10, Traders, Kings and Pilgrims. So let's start the chapter with Jagini at the market. Jagini looked forward to the fair in the village. She loved to see and touch the pots and pans of shiny steel, bright plastic buckets, cloth printed with brilliant floral designs, and clockwork toys, all of which came from the city. The men who spread out their wares came in buses and trucks and went back at the end of the day. Why were they always on the move? She wondered. Her mother explained that they were traders, people who bought things where they were made and sold them elsewhere. सो जागनी अपने गांव के मेले में जाती है तो उसने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे देखी जो उसको बहुत अच्छी लगी, जैसे कि पॉट्स एंड पैन्स ऑफ शाइनी स्टील, ब्राइट प्लास्टिक बकेट्स, क्लॉथ प्रिंटेड विद ब्रिलियंट फ्लोरल डिजाइन एंड क्लॉकवर्क टॉयज, जो कि सब शहर से आए थे, सिटी से आए थे। जो लोग ये सब लेके आए थे वो सब बसेस और ट्रक्स में आए थे और एंड ऑफ द डे पे वापस चले गए थे। तो जागिनी ने सोचा कि ऐसा क्यों, वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं चीजें बेचने के लिए। तो उसकी मदर ने उसको बताया कि ये सब ट्रेडर्स हैं, ये लोग वो हैं जो जहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स या आर्टिकल्स बनते हैं वहां से लेके आते हैं और उनको दूसरी जगह पे आके बेचते हैं। So now we will see how to find out about trade and traders. This fine pottery, especially bowls and plates, were found from several archaeological sites throughout the subcontinent. So हमने अपने last chapter में देखा about northern black polished ware. So ऐसी फाइन पोटरी जैसे कि बाउल्स एंड प्लेट्स ये सब अलग अलग जगह से आर्कियोलॉजिकल साइट से देखने को मिली throughout the subcontinent. How do you think it reached these places? आप कैसे सोच सकते हो कि ये एक जगह से दूसरी जगह कैसे गई होगी? So, traders may have carried them from places where they were made to sell them at other places. So, traders ने ही ये काम किया हो सकता है कि जहाँ पे ये बनती थी वहाँ से उसको दूसरी जगह पे ले जाके बेचते थे। South India was famous for gold, spices, especially pepper, and precious stones. Pepper was particularly valued in the Roman Empire, so much so that it was known as black gold. So traders carried many of these goods to Rome in ships across the sea and by land in caravans. There must have been quite a lot of trade, as many Roman gold coins have been found in South India. So South India famous था gold, spices और स्पाइसेस में स्पेशली पेपर के लिए एंड ऑल्सो फॉर प्रेशियस स्टोन। पेपर को रोमन एम्पायर में इतनी वैल्यू मिली कि उसका नाम ब्लैक गोल्ड भी रखा गया। पेपर को ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाने लगा रोमन एम्पायर में। सो ट्रेडर्स ने बहुत सारे गुड्स रोम लेके गए, कैसे? सी के थ्रू वाया शिप्स और लैंड के थ्रू इन कारवान्स। बहुत सारा ट्रेड हुआ साउथ इंडिया और रोमन एम्पायर में एंड ये हमको देखने को मिला रोमन गोल्ड कॉइन के थ्रू जो कि फाउंड आउट हुए साउथ इंडिया में। So there is a poem about trade. We can find evidence of trade in the संगम poem. संगम poems में हमको इन trades का evidence देखने को मिला। Here is one which describes the goods brought into Puhar, an important port on the east coast. Here are brought swift prancing horses by sea in ships, bales of black pepper in carts, gems and gold born in Himalayas, sandalwood born in the western hills, the pearls of the southern seas, and corals from the eastern oceans, the yield of the Ganga and the crops from the Kaveri, foodstuffs from Sri Lanka, pottery from Myanmar, and other rare and rich imports. तो क्या देखने को मिला कि यहाँ पे क्या क्या लाए गए हैं? जहाजों में समुंदर के किनारे तेज उछलते हुए घोड़े,
गाड़ियों में काली मिर्च की गांठें, हिमालय में पैदा हुए रतन और सोना, पश्चिमी पहाड़ियों में पैदा हुए चंदन, दक्षिण समुद्र के मोती और पूर्वी महासागरों से मूंगे, गंगा की उपज और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से खाद्य पदार्थ, म्यांमार से मिट्टी के बर्तन और अन्य दुर्लभ आयात। तो ये सब चीजों का ट्रेड हुआ था और इसके बारे में ये पोइम है, अ पोइम अबाउट ट्रेड विच डिस्क्राइब द गुड्स brought into Prohar, important port on the sea coast. Traders explored several sea routes. Some of these followed the coast. ट्रेडर्स ने बहुत सारे अलग अलग सी रूट्स को एक्सप्लोर किया और उनमें सबसे ज़्यादा देखने को मिले कोस्ट. There were others across the Arabian Sea and the Bay of Bengal where sailors took advantage of the monsoon winds to cross the seas more quickly. So if they wanted to reach the western coast of the subcontinent from East Africa or Arabia, they chose to sail with the southwest monsoon. And sturdy ships had to be built for these long journeys. So और क्या देखने को मिल गया कि सेलर्स ने अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल का भी एडवांटेज उठाया क्योंकि मॉनसून विंड्स के थ्रू वो सी को जल्दी क्रॉस कर लेते थे. तो उनको अगर वेस्टर्न कोस्ट जाना होता था सब कॉन्टिनेंट के ईस्ट अफ्रीका या अरेबिया से, तो वो साउथ वेस्ट मॉनसून के थ्रू आउट भी सेल करने का सोचते थे क्योंकि जो मजबूत जहाज थे, स्टर्डी शिप्स थी, वो बनाई गई थी इन लॉन्ग जर्नीज के लिए. न्यू किंगडम along the coast. The southern half of the subcontinent is marked by a long coastline and with hills, plateaus and river valleys. तो जो साउदर्न हाफ है सब कॉन्टिनेंट का, वहाँ पे क्या देखने को मिला? लॉन्ग कोस्ट लाइन जहाँ पे हिल्स, प्लेट्यूज एंड रिवर वैलीज सब कुछ प्रेजेंट है. Amongst the river valleys, that of the Kaveri is the most fertile. Most fertile river valley है कावेरी की. Chiefs and kings who controlled the river valleys and coast became rich and powerful. Sangam poems mention the Movendar. This is a Tamil word meaning three chiefs, used for the heads of three ruling families, the Cholas, Cheras, and Pandyas, who became powerful in South India around 2300 years ago. सो जो चीफ्स और किंग्स इन रिवर वैलीज को कंट्रोल करते थे वो धीरे धीरे रिच और पावरफुल बन गए और संगम पोइम्स में उनको नाम दिया गया मूवेंदर. मूवेंदर एक तमिल वर्ड है जिसका मतलब है थ्री चीफ्स या अलग अलग थ्री रूलिंग फैमिलीज के हेड. सो कौन कौन सी रूलिंग फैमिली के हेड का यहाँ पे हमको मेंशन किया गया है? वो है चोलास, चेरास एंड पांड्यास. थ्री रूलिंग हेड्स ऑफ रूलिंग फैमिलीज, चोलास, चेरास एंड पांड्या, जो पावरफुल हुए साउथ इंडिया में लगभग 2300 ईयर्स पहले. ईच ऑफ थ्री चीफ्स हैड टू सेंटर्स ऑफ पावर. सो हर एक चीफ के पास दो सेंटर थे पावर के, वन इनलैंड एंड वन ऑन द कोस्ट. ऑफ दीज 6 cities, 2 were very important, पुहार और कावेरी पत्तनम, the port of the Cholas, and Madurai, the capital of the Pandyas. So इनकी 6 cities में से दो बहुत important है, पुहार और कावेरी पत्तनम जो कि पोर्ट था चोलास का. पुहार और कावेरी पत्तनम पोर्ट ऑफ चोलास and Madurai, the capital of the Pandyas. The chiefs did not collect regular taxes. Instead, they demanded and received gifts from the people. अब यहाँ पे क्या देखने को मिला कि chiefs रेगुलर टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे पर वो डिमांड करते थे या फिर रिसीव करते थे लोगों से गिफ्ट्स. दे ऑल्सो वेंट ऑन मिलिट्री एक्सपेडिशंस एंड कलेक्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम नेबरिंग एरिया. तो वो सैन्य अभियान के लिए भी जाते थे जिसके कारण उनको नेबरिंग एरिया से ट्रिब्यूट मिलता था. They kept some of the wealth and distributed the rest among their supporters, including members of their family, soldiers, and poets. Many poets, whose compositions are found in the Sangam collection, composed poems in praise of chiefs who often rewarded them with precious stones, gold, horses, elephants, chariots, and fine clothes. तो जो भी वेल्थ आती थी उनके पास वो कुछ अपने पास रखते थे और बाकी की सब डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे अपने सपोर्टर्स में या फिर मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली, सोल्जर्स एंड पोर्ट्स.
बहुत सारे पोइट्स की कॉम्पोजिशन देखने को मिली संगम कलेक्शन में, जिनमें चीफ्स की प्रेज की हुई है, जिनको बहुत सारे रिवॉर्ड्स दिए गए थे। रिवॉर्ड किया गया था उनको प्रेशियस स्टोन, गोल्ड, हॉर्सेस, एलिफेंट्स, चैरियट्स एंड फाइन क्लोथ्स से। Around 200 years later, a dynasty known as Satavahanas became powerful in western India. The most important ruler of Satavahanas was Gautamiputra Sri Satakarni. So 200 साल बाद एक डायनेस्टी देखने को मिली जिसका नाम था सातवाहनस, एंड ये डायनेस्टी बहुत पावरफुल हुई वेस्टर्न इंडिया में। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर थे गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी। We know about him from an inscription composed on behalf of his mother, Gautami Balashri. हमको उनके बारे में कहाँ से पता चला? एक इंस्क्रिप्शन से जो कि कंपोज हुई है उनके मदर के बिहाफ पे। उनके मदर का नाम था गौतमी बालाश्री। He and other Satvahana rulers were known as lords of Dakshinapath, literally the route leading to south. So Satvahana rulers को बोला जाता था लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ, जिसका मतलब है रूट लीडिंग टू द साउथ, which was also used as a name for entire southern region. He sent his army to the eastern, western and southern coast. So ये नाम यूज होता है पूरे साउदर्न रीजन के लिए भी, और उन्होंने अपनी आर्मी को कहाँ कहाँ भेजा? ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड साउदर्न कोस्ट पे। नाउ द स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट। The rich, glossy colors of silk, as well as its smooth texture, make it a highly valued fabric in most societies. Making silk is a complicated process. जो हम रिच ग्लोसी कलर्स देखते हैं सिल्क के और उसका स्मूथ टेक्सचर देखते हैं, इस वजह से उसकी बहुत हाई वैल्यू है। बट सिल्क को बनाना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। नाउ वी विल सी द प्रोसेसिंग ऑफ मेकिंग सिल्क. Raw silk has to be extracted from the cocoons of silkworms, spun into thread and then woven into cloth. तो क्या किया जाता है? जो कच्चा रेशम का धागा है, कच्चा रेशम, उसको निकालना पड़ता है। Raw material has to be extracted. रेशम के कीड़ों के ककून को धागे में पिरोया जाता है और फिर कपड़े में बुना जाता है। Techniques of making silk were first invented in China around 7,000 years ago. और जो सिल्क बनाने की टेक्निक है वो सबसे पहले देखने को मिली चाइना में 7,000 साल पहले। While the methods remained a closely guarded secret for thousands of years, some people from China who went to distant lands on foot, horseback and on camels carried silk with them. The path they followed came to be known as the Silk Route. So इस मेथड को सीक्रेट रखा गया हजारों सालों तक, और जब लोग चाइना से दूर दूर जाते थे वाया फुट, हॉर्स बैग या फिर कैमल्स पे, तो वो अपने साथ सिल्क लेके जाते थे। तो जिन रूट्स पे, जिन पाथ पे वो लोग जाते थे, उस रूट का या उस पाथ का नाम रख दिया गया सिल्क रूट। Sometimes Chinese rulers sent gifts of silk to rulers in Iran and West Asia, and from there knowledge of silk spread further west. तो कभी कभी ऐसा होता था जो चाइना के रूलर्स थे वो सिल्क को गिफ्ट के तौर पे भेजते थे अलग अलग रूलर्स को, जैसे कि ईरान और वेस्ट एशिया में, और वहां से सिल्क का नॉलेज अलग अलग जगह पे स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया। About 2000 years ago, wearing silk became the fashion amongst rulers and rich people in Rome. It was very expensive as it had to be brought all the way from China along dangerous roads through mountains and deserts. People living along the route often demanded payments for allowing traders to pass through. तो धीरे धीरे ये सिल्क पहनना, वियरिंग सिल्क क्या हो गया? फैशन बन गया अमीर लोगों का और रूलर्स का रोम में, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव था। तो क्यों एक्सपेंसिव था? क्योंकि इसको इतने लंबे रूट से चाइना से लेके आते थे, डेंजरस रोड्स के थ्रू, माउंटेन, डेजर्ट, सबके थ्रू। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो इस रूट पे लोग रहते थे उन्होंने पेमेंट डिमांड करनी शुरू कर दी ट्रेडर्स को पास करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह। Some kings tried to control large portions of the route.
This was because they could benefit from taxes, tributes and gifts that were brought by traders traveling along the route. तो कुछ किंग्स ने क्या किया, उन्होंने इस रूट के पोर्शंस को कंट्रोल करना शुरू कर दिया ताकि उनको अलग अलग बेनिफिट मिल सके, टैक्सेस का बेनिफिट मिल सके, गिफ्ट्स मिल सके जो ट्रेडर्स लेके आते थे ट्रैवलिंग में. In return, they often protected the traders who passed through their kingdoms from attacks by robbers. पर इन रिटर्न वो उन ट्रेडर्स का प्रोटेक्शन भी करते थे ताकि उन पे कोई भी रॉबरी अटैक ना हो पाए. The best known of the rulers who controlled the Silk Route were the Kushanas, who ruled over Central Asia and Northwest India around 2000 years ago. So सबसे बेस्ट रूलर थे जिन्होंने कंट्रोल किया इस सिल्क रूट था वो थे कुशानास. उन्होंने रूल किया सेंट्रल एशिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में लगभग 2000 साल पहले. Their two major centers of power were पेशावर एंड मथुरा. दो मेजर सेंटर थे उनके पावर के, पेशावर एंड मथुरा. पेशावर इज इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान एंड मथुरा इज इन प्रेजेंट डे इंडिया, उत्तर प्रदेश. तक्षशिला वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन देयर किंगडम. तक्षशिला भी उनके किंगडम का ही पार्ट था. During their rule, a branch of Silk Route extended from Central Asia down to the seaports at the mouth of the river Indus, from where silk was shipped westwards to the Roman Empire. So, उनके रूल के थ्रूआउट एक सिल्क रूट एक्सटेंड हुआ, एक ब्रांच सिल्क रूट की एक्सटेंड हुई कहाँ से कहाँ तक, सेंट्रल एशिया से माउथ ऑफ रिवर इंडस तक. यहाँ पे सिल्क को शिप किया जाता था वेस्टवर्ड्स, कहाँ के लिए, रोमन एम्पायर भेजने के लिए. The Kushanas were among the earliest rulers of the subcontinent to issue gold coins. They were used by traders along the Silk Route. So सबसे पहले गोल्ड कॉइन किसने इशू किए, कुशानर ने. एंड ये गोल्ड कॉइन यूज कौन करता था, ट्रेडर्स अलोंग द सिल्क रूट. द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म. सो अब हम देखते हैं उस टाइम पे बुद्धिज्म कैसे स्प्रेड हुआ. द मोस्ट फेमस कुशाना रूलर वॉज कनिष्का, who ruled around 1900 years ago. He organized a Buddhist council where scholars met and discussed important matters. Ashwaghosh, a poet who composed a biography of the Buddha, the Buddha-charitra, lived in his court. Ashwaghosh and other Buddhist scholars now began writing in Sanskrit. So, सबसे फेमस कुशाना रूलर हुए कनिष्क, जिन्होंने लगभग 1900 साल पहले रूल किया. उन्होंने एक बुद्धिस्ट काउंसिल का ऑर्गेनाइजेशन किया. यहाँ पे अलग अलग स्कॉलर्स आके बैठे, मिले और उन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स पे डिस्कशन किया. अश्वघोष एक पोइट थे जिन्होंने बायोग्राफी लिखी बुद्धा की, जिसका नाम दिया बुद्ध चरित्र. वो उनके ही राज्य में रहते थे. तो अश्वघोष और अलग अलग बुद्धिस्ट स्कॉलर्स ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था. A new form of Buddhism known as Mahayana Buddhism now developed. अब एक नई फॉर्म आई बुद्धिज्म की जिसको नाम दिया गया महायान बुद्धिज्म, और इसके दो अलग अलग फीचर्स भी थे. Earlier, Buddha's presence was shown in sculpture by using certain signs. For instance, his attainment of enlightenment was shown by sculptures of the people tree. पहले क्या देखने को मिला कि बुद्धा की जो प्रेजेंस थी वो कुछ साइंस के थ्रू देखने को मिलती थी स्कल्पचर में, और उनका जो एनलाइटमेंट हुआ था पीपल ट्री के नीचे वो भी स्कल्पचर के थ्रू ही देखने को मिला था. नाउ स्टैच्यूज ऑफ बुद्धा वर मेड. अब स्कल्पचर नहीं, अब स्टैच्यूज बनने शुरू हो गए बुद्धा के. एंड मैनी ऑफ दीज वर मेड इन मथुरा वाइल अदर्स वर मेड इन तक्षशिला. बहुत सारे ये स्टैच्यूज मथुरा में मिले पर कुछ तक्षशिला में भी देखने को मिले. सो पहले हम देखते हैं इस इमेज पे, ये एक स्कल्पचर है फ्रॉम स्तूपा इन सांची. सो दिस इज एन इमेज ऑफ स्कल्पचर ऑफ स्तूपा इन सांची. यहाँ पे एक पीपल ट्री दिखाया गया है जिसके नीचे बुद्धा को एनलाइटमेंट मिली. और here we have image of Buddha from Mathura. This is a sculpture image of Buddha from Mathura, and this is an image of Buddha from Takshila. These both are the statues. Statue image from Mathura and statue image of Buddha from Takshila. And this is a sculpture image from Sanchi.
The second change was the belief in bodhisattvas. तो पहला चेंज हमको मिला कि स्कल्पचर से स्टैच्यूज बनने शुरू हो गए. सेकंड चेंज हमको जो देखने को मिला वो था बिलीफ इन bodhisattvas. These were supposed to be person who had attained enlightenment. बोधिसत्व कौन थे? वो पर्सन जिनको enlightenment का attainment हुआ था. Once they attained enlightenment, they could live in complete isolation and meditate in peace. एक बार जब उनको enlightenment मिल जाती थी तब वो मेडिटेशन करते थे पीस में, कंप्लीट आइसोलेशन में रह के, बिल्कुल अकेले रह के. However, instead of doing that, they remained in the world to teach and help other people. The worship of bodhisattvas became very popular and spread throughout Central Asia, China, and later to Korea and Japan. Meditation और अकेले रहने के बावजूद भी वो दुनिया में भी रह के लोगों को पढ़ाते थे, लोगों की हेल्प करते थे, और ये वर्शिप इतनी पॉपुलर हो गई कि ये अलग अलग एरियाज में स्प्रेड हो गई. कहाँ कहाँ पे स्प्रेड हुई? सेंट्रल एशिया, चाइना, and उसके बाद कोरिया and Japan. Buddhism also spread to western and southern India where dozens of caves were hollowed out of hills for monks to live in. Buddhism western और southern Asia में भी spread हुआ जहाँ पे बहुत सारे caves देखने को मिले hills के hollow out किए हुए जहाँ पे monks रहते थे. Some of these caves were made on the orders of kings and queens, others by merchants and farmers. These were often located near passes through the Western Ghats. बहुत सारे caves बने थे kings and queens के order पे, बल्कि कुछ देखने को मिले जो कि बनाए गए थे merchants and farmers के through. And ज़्यादातर ये सब located through the Western Ghats. Roads connecting prosperous ports on the coast with cities in the Deccan ran through these passes. Traders probably halted in these cave monasteries during their travels. तो ऐसा भी देखने को मिला कि जो cave monasteries थी वहाँ पे traders भी रुकते थे during their travel. Buddhism also spread southeastward. Buddhism केवल सेंट्रल एशिया, कोरिया, जापान तक ही नहीं रहा, वो साउथ ईस्टवर्ड की तरफ भी स्प्रेड हुआ to Sri Lanka, Myanmar, Thailand, and other parts of Southeast Asia, including Indonesia. The older form of Buddhism, known as Theravada Buddhism, was more popular in this area. So, जो older form थी Buddhism की, Theravada Buddhism, वो ज़्यादा popular थी South Eastward area में. The quest of the pilgrims. But पहले हम देखते हैं who were pilgrims. Pilgrims are men and women who undertake journeys to holy places in order to offer worship. तो pilgrims men and women थे, ऐसे men and women जो journeys पे जाते थे holy places की journey पे, ताकि वो worship कर सके वहाँ जाके. Holy places means पवित्र स्थानों की यात्रा करते थे, जैसे कि मंदिर, temples, Gurudwaras, etc. As traders journeyed to distant lands in caravans and ships, pilgrims often traveled with them. So, जैसे traders एक जगह से दूसरी जगह जाते थे कारवां और ships में, तो pilgrims भी उनके साथ ही travel करते थे. The best known of these are the Chinese Buddhist pilgrims Faxian, who came to the subcontinent about 1600 years ago, Xuanzang, and I King, who came about 50 years after Xuanzang. They came to visit places associated with the life of Buddha as well as famous monasteries. So, best known Chinese Buddhist pilgrims हैं Faxian, Xuanzang, I King, और ये सब क्यों आए थे यहाँ पे? बुद्धा से रिलेटेड जो भी प्लेसेस थी उन सबको देखने के लिए और बुद्धा की लाइफ के बारे में जानने के लिए. Each of these pilgrims left an account of his journey. They wrote of the dangers they encountered on their travels, which often took years, of the countries and the monasteries that they visited, and the books they carried back with them. So, pilgrims जो भी आए थे उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में लिखा, डेंजर्स लिखे जो उनको मिले उनके ट्रैवलिंग में, और कितना टाइम लगा, बुक्स लिखी, और बुक्स वो वापस भी लेके गए about the life of Buddha. So, एक पिलग्रिम है फाजियान, वो क्या लिखते हैं?
अपने अकाउंट में अबाउट देयर जर्नी हाउ फाजियान रिटर्न्ड टू चाइना. Fadian began his journey back home from Bengal. He boarded a ship belonging to some merchants. They had barely traveled for 2 days when they were caught in a storm. तो फाजिया ने अपनी चाइना जाने की वापसी जर्नी शुरू की बंगाल से. शिप बोर्ड की, जो कि कुछ मर्चेंट्स बिलोंग करते थे उस शिप में, एंड वो भी उसी शिप में बोर्ड हो गए. तो उन्होंने लगभग 2 दिन के लिए ट्रैवल किया ही होगा कि रास्ते में आंधी तूफान आ गया. The merchants began throwing their merchandise overboard so as to lighten the load and save the ship from sinking. तो मर्चेंट ने जो भी उनका सामान था वो अनलोड करना शुरू कर दिया ताकि वो शिप को डूबने से बचा सके. Fadian threw away his meager personal belongings but clung to his books and statues of Buddha that he had collected. तो फाजियान ने भी अपनी पर्सनल चीजें सब फेंक दी, पर उसने बुक्स और स्टैच्यूज बुद्धा के नहीं फेंके जो उसने कलेक्ट किए थे. फाइनली द स्टॉर्म सबसाइडेड आफ्टर 13 डेज. और फाइनली क्या हुआ, वो स्टॉर्म, वो आंधी तूफान शांत हुआ लगभग 13 दिनों के बाद. दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब द सी. The sea itself is boundless in extent. It is impossible to know east or west except by observing the sun, moon, or stars in their motions. If it is dark, rainy weather, the only plan is to steer by the wind. तो उसने सी के बारे में क्या लिखा कि सी तो बाउंडलेस है, कोई बाउंड्री नहीं है सी की. ये इम्पॉसिबल था कि ईस्ट डायरेक्शन कौन सी है या वेस्ट डायरेक्शन कौन सी है ये पता लगा पाए, पर ये सब पता कैसे लगाया, सन, मून और स्टार्स के मोशन के थ्रू. अगर डार्क और रेनी वेदर था तो एक ही प्लान होता था कि जिधर विंड जा रही है उसी विंड के साइड पे हमको मूव करना है. It took him more than 90 days to reach Java, where he halted for 5 months before boarding another merchant ship that took him to China. So, उसको फाजियान को जावा पहुंचने में 90 दिन लग गए, जहाँ पे वो 5 महीने तक रहे, और उसके बाद उन्होंने दूसरी बोट मर्चेंट शिप बोट की जो उनको चाइना लेके गई. Xuanzang, who took the land route back to China, carried back with him statues of Buddha made of gold, silver, and sandalwood, and over 600 manuscripts loaded on the backs of 20 horses. फाजियान ने सी रूट चुना एंड जुआनजैंग ने लैंड रूट चुना चाइना जाने के लिए. तो जुआनजैंग अपने साथ क्या क्या लेके गए, वो अपने साथ लेके गए बहुत सारे स्टैच्यूज बुद्धा के जो कि बने हुए थे गोल्ड, सिल्वर और सैंडलवुड के, एंड उसके अलावा वो लेके गए 600 मैन्यूस्क्रिप्ट 20 हॉर्सेस की बैग पे लोड करके. Over 50 manuscripts were lost when the boat on which he was crossing the Indus capsized. He spent the rest of his life translating the remaining manuscripts from Sanskrit into Chinese. लगभग 50 मैन्यूस्क्रिप्ट से ज़्यादा तो लॉस्ट हो गई थी जब वो इंडस रिवर को क्रॉस कर रहे थे, और बाकी का जीवन उन्होंने अपना क्या किया, उन्होंने जो भी मैन्यूस्क्रिप्ट थी उनको संस्कृत से चाइनीज में ट्रांसलेट किया. Now, Nalanda, a unique center of Buddhist learning. Xuanzang and other pilgrims spent time studying in Nalanda, the most famous Buddhist monastery of the period. So, उस टाइम की सबसे फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी नालंदा, जो कि प्रेजेंट डे बिहार में है. एंड जुआनजैंग ने भी अपना टाइम वहाँ पे स्पेंड किया स्टडी करके अबाउट द बुद्धिस्ट कल्चर. दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब्ड इट. The teachers are men of the highest ability and talent. They follow the teachings of the Buddha in all sincerity. The rules of the monastery are strict and everyone has to follow them. Discussions are held throughout the day, and the old and the young mutually help one another. Learned men from different cities come here to settle their doubts. The gatekeeper asks new entrants difficult questions. They are allowed to enter only after they have been able to answer these. 7 or 8 out of every 10 are not able to answer. तो वो कैसे डिस्क्राइब करते हैं नालंदा को, वो लिखते हैं कि जो टीचर्स थे वो सब मेन थे, एंड वो मेन थे हाईएस्ट एबिलिटी और हाईएस्ट टैलेंट के. वो बुद्धा की टीचिंग को पूरी सिंसेरिटी से फॉलो करते थे,
जो रूल्स थे मोनेस्ट्री के वो स्ट्रिक्ट थे, पर सबको उनको फॉलो करना था। डिस्कशंस चलते थे पूरा दिन। ओल्ड एंड यंग एक दूसरे की हेल्प करते थे। अलग अलग जगह से लर्न मैन आते थे अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए। जब भी कोई नया एंट्रेंट आता था नालंदा में, तो गेटकीपर उसको बहुत क्वेश्चंस पूछते थे, डिफिकल्ट क्वेश्चंस। और अलाउंस एंट्रेंस का तभी मिलता था जब आप उसका आंसर दे तो। लगभग 7 से 8 लोग 10 में से आंसर नहीं दे पाते थे, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते थे। तो ये डिस्क्रिप्शन दिया जुएन जेंग ने अबाउट नालंदा, विच वॉज अ यूनिक सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। Now, the beginning of Bhakti. This was also the time when the worship of certain deities, which became a central feature of later Hinduism, gained in importance. These deities included Shiva, Vishnu, and goddesses such as Durga. So ये वो भी टाइम है जब बहुत सारे deities की वर्शिप होना शुरू हो गया हिंदुज्म में एंड इम्पोर्टेंस मिली। So, कौन कौन से deities हैं वो? शिवा, विष्णु and goddesses also such as Durga. These deities were worshipped through bhakti, an idea that became very popular at this time. तो इनकी worship कैसे होती थी? Via भक्ति, एक आइडिया जो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। तो what is bhakti? Bhakti is generally understood as a person's devotion to his or her chosen deity. Anybody, whether rich or poor, belonging to the so-called high or low caste, man or woman, could follow the path of bhakti. तो भक्ति कोई भी कर सकता था, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, कोई भी लो कास्ट हो या हाई कास्ट हो, मैन हो या वुमेन हो, रिच हो या पुअर हो, इससे कोई लेन देन नहीं था। भक्ति वॉज इक्वल फॉर एवरीवन। एंड पर्सन का खुद का पर्सनल चॉइस था, वो किसकी भक्ति करना चाहता है, किस डिएटी को डिवोशन देना चाहता है। The idea of bhakti is present in the Bhagavad Gita, a sacred book of the Hindus, which is included in the Mahabharata. So जो भक्ति का आइडिया है वो भागवत गीता में अभी भी प्रेजेंट है, जो कि sacred book है हिंदूज की। In this, Krishna, the god, asks Arjun, his devotee and friend, to abandon all dharma and take refuge in him, as only he can set Arjun free from every evil. This form of worship gradually spread to different parts of the country. So, भागवत गीता में कृष्ण भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि तू सब चीज़ों का त्याग करके मेरी शरण में आ जा, ताकि मैं तेरे को हर बुरी चीज़ से बचा दूँ। तो ये इस टाइप की वर्शिप फिर स्प्रेड होनी शुरू हो गई अलग अलग पार्ट्स में। Those who followed the system of bhakti emphasized devotion and individual worship of a god or goddess rather than performance of elaborate sacrifices. तो जिन्होंने इस भक्ति के सिस्टम को फॉलो करना शुरू किया, उन्होंने परफॉर्मेंस है जो सैक्रिफाइसेस की उसको इलेबोरेट करना बंद कर दिया। एंड एक ही वर्शिप की, ए सिंगल इंडिविजुअल वर्शिप ऑफ अ गॉड और गॉडेस। According to this system of belief, if a devotee worships the chosen deity with a pure heart, then deity will appear in the form in which he or she may desire. So the deity could be thought of as a human being, lion, tree, or any other form. Once this idea gained acceptance, artists made beautiful images of these deities. So जब ये सिस्टम शुरू हुआ तो डिवोटीज ने वर्शिप करना शुरू कर दिया अपने पसंद के deity का बिल्कुल सच्चे मन से। और फिर डियटी का एक्सपीरियंस भी उनको मिला, क्योंकि डियटी फिर अपीयर होते थे जिस भी फॉर्म में वो होना चाहते थे। ये सब जब होना शुरू हुआ तो लोगों ने बताना शुरू किया कि वो कैसे दिखते हैं, क्या होता है। तो जब ये इस आइडिया ने एक्सेप्टेंस गेन की तो आर्टिस्ट ने बहुत ही ब्यूटीफुल इमेजेस बनाई इन सब डियटीज की। Because the deities were special, these images of the deity were often placed within special homes, places that we describe as temple. क्योंकि ये deities बहुत स्पेशल हैं तो इनकी इमेजेस को स्पेशल होम्स और वी कैन से मंदिरों में प्लेस करना शुरू कर दिया। भक्ति इंस्पायर्ड सम ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेशन इन आर्ट। तो भक्ति के हमको इंस्पिरेशन देखने को मिली कुछ आर्ट्स में, जैसे कि स्कल्पचर, पोएट्री and architecture.
So this is an image of a statue of Vishnu. Vishnu as Varaha, an image from Iran, Madhya Pradesh. So ये image कहाँ की है? ईरान, पढ़ेंगे मध्य प्रदेश. This magnificent statue is a special form of Vishnu, the Varaha or boar. Vishnu took the shape of a boar in order to rescue the earth which had sunk into water. Here the earth is shown as a woman. You can see the earth as a woman. So this was a statue of Vishnu. Now, Bhakti. Bhakti comes from the Sanskrit term bhaj, meaning to divide or share. This suggests an intimate two-way relationship between the deity and the devotee. Bhakti is directed towards Bhagavad, which is often translated as God, but also means one who possesses and shares bhag, literally good fortune or bliss. The devotee known as Bhakt or Bhagavad shares his or her chosen deity's bhag. तो भक्ति एक संस्कृत टर्म भक्त से लिया गया है और इसका मतलब है टू वे रिलेशनशिप. टू वे रिलेशनशिप मीन्स भक्त और भगवान के बीच का रिलेशन, डियटी एंड डिवोटी रिलेशनशिप. भक्ति डायरेक्टेड है भागवत की तरफ, जिसको ट्रांसलेट करते हैं तो माना जाता है भगवान गॉड, जिसके साथ हम भाग शेयर करते हैं. मीन भाग मतलब गुड फॉर्चून, गुड फ्यूचर और ब्लेसिंग्स. और जो डिवोटी है, जो कि भक्त के नाम से जाना जाता है, वो क्या शेयर करता है? हिज और हर चोजन डियटीज भाग. सो एक पोइम लिखी है एक भक्त ने, पोइम बाय अ भक्त. Most bhakti literature tells us that riches, learning and high status do not automatically ensure a close relationship with the deity. So बहुत सारी भक्ति लिटरेचर से क्या देखने को मिला कि अमीर होना, हाई स्टेटस होना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका deity के साथ, भगवान के साथ बहुत गहरा और बहुत अच्छा रिलेशन है. This is part of a poem composed in Tamil by Appar, a devotee of Shiva who lived about 1400 years ago. अपार वो द विल्लल. तो ये पार्ट ऑफ पोइम, एक पोइम का पार्ट अभी अपार ने लिखा है तमिल में, जो कि शिवा के डिवोटी थे. सो लेट्स सी अ पोइम. The leper with rotting limbs, the man who is regarded as low by the Brahmin, even the scavenger, even these men, if they are servants of him who shelters the Ganga in his long ear, I worship them. They are gods to me. तो क्या कहता है वो भक्त, जो कि सड़े हुए अंगों वाला कोढ़ी होता है, वह व्यक्ति जिसे ना ब्राह्मण और यहाँ तक कि नर भी नीच समझता है, लोग भी नीच समझते हैं. यहाँ तक कि ये लोग जो भक्त हैं, जो सेवक है भगवान के, जो किस भगवान के, जो अपनी लंबी जटाओं में गंगा को आश्रय देते हैं, मतलब कि शिव भगवान के, मैं उनकी पूजा करता हूँ, वे मेरे लिए भगवान है, वो उसके लिए भगवान है. ऐसे इंसान के लिए भी. सो हाई स्टेटस, लो स्टेटस, रिच पुअर, आप कैसे भी हो, आप डियटी को जिस भी डियटी की आप पूजा करना चाहते हो, आप कर सकते हो. बिकॉज deities वर स्पेशल, दीज इमेजेस ऑफ deity. तो हमने अभी देखा कि जो deities हैं वो स्पेशल है, भगवान है वो स्पेशल है, इसलिए उनकी मूर्तियों को मंदिरों में रखा जाता है. हिंदू. सो जो हिंदू वर्ड है वो इंडिया के तरह ही इंडस रिवर से ही डिराइव किया हुआ वर्ड है. सो हिंदू वर्ड सबसे पहले कहाँ यूज हुआ? इट वॉज यूज बाय अरब्स एंड इरानियंस टू रेफर टू पीपल हु लिव टू द ईस्ट ऑफ रिवर एंड टू देयर कल्चरल प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग रिलीजियस बिलीफ्स. सो ये अरब्स एंड इरानियंस ने यूज किया किन लोगों के लिए? जो लोग इंडस रिवर के ईस्ट में रहते थे. और क्यों किया? उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस को देखते हुए, उनके रिलीजियस बिलीफ्स को देखते हुए. तो ये तो हमने देखा कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में क्या हो रहा था उस टाइम पे, बट एल्सवेयर इन द वर्ल्ड देयर वाज हैपनिंग समथिंग एल्स. लेट्स सी. अबाउट 2000 years ago क्रिश्चियनिटी इमर्ज इन वेस्ट एशिया. तो लगभग 2000 साल पहले क्रिश्चियनिटी का इमर्जेंस शुरू हुआ, प्रेजेंस होना शुरू हुआ. कहाँ पे? वेस्ट एशिया में. जीसस क्राइस्ट वॉज बोर्न इन बेथलहेम विच वॉज देन पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर. जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ बेथलहेम में, जो कि रोमन एम्पायर का पार्ट था.
Christ's teachings were that he was the savior of the world. जीसस क्राइस्ट ने लोगों को क्या सिखाना शुरू किया कि वो दुनिया के सेवियर हैं, वो दुनिया को बचाने आए हैं. He also taught people to treat others with love and trust others just as they themselves wanted to be treated. उन्हें लोगों को सिखाया कि दूसरों को भी उतना ही प्यार दो, उतना ही ट्रस्ट दो जितना आप खुद के लिए चाहते हो. Here are a few verses from the Bible, the holy book that contains the teachings of Christ. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. So, यहाँ पे कुछ बाइबल से वर्सेस लिए गए हैं जिसमें लिखा गया है कि ब्लेस्ड आर दोज हु हंगर एंड थर्स्ट फॉर राइटियसनेस, मीन धन्य है वो जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे. फॉर दे शैल बी फिल्ड, मीन वो तृप्त किए जाएंगे. धन्य है वो दयालु क्योंकि उन पर दया की जाएगी. धन्य है वो हृदय के शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे. धन्य है शांति दूत क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Christ's teachings appeal to ordinary people and spread through West Asia, Africa and Europe. तो क्राइस्ट ने अपनी टीचिंग्स का गुणगान किया आम लोगों में और उनको स्प्रेड किया वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप में. The first Christian preachers came from West Asia to West Coast of subcontinent within 100 years of Christ's death. तो जीसस क्राइस्ट की डेथ के लगभग 100 साल के बाद जो फर्स्ट क्रिश्चियन प्रीचर है क्रिश्चियनिटी का गुणगान करने के लिए वेस्ट एशिया से सब कॉन्टिनेंट के वेस्ट कोस्ट में आए थे. The Christians of Kerala, known as Syrian Christians because they probably came from West Asia, are amongst the oldest Christian communities in the world. तो जो केरल के क्रिश्चियंस हैं उनको सारियन क्रिश्चियंस के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये लोग वेस्ट एशिया से आए थे एंड ओल्डेस्ट क्रिश्चियन कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं. So here we complete the chapter 10, Traders, Kings and Pilgrims. If you have any doubt, you can ask me in the comment. If you all like my video, then kindly subscribe to my channel Naveen Chahat Lifelines and also like, comment and share. Thank you for watching.